اسرائیل نے جبالیہ کیمپ میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ 2 حملوں میں عورتوں بچوں سمیت 80 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ معصوم بچے لاشوں کے درمیان چلنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے جبالیہ میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ ایک ہی خاندان کے 32 افراد شہید ہو گئے، جن میں 19 معصوم بچے شامل ہیں۔ اس سے پہلے جبالیہ میں اسکول پر وحشیانہ بمباری کی گئی، جس میں بچوں اور عورتوں سمیت 50 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے۔ الفقورہ اسکول اقوام متحدہ کے زیر انتظام ہے، جس انسانی تاریخ کا بدترین ظلم۔ غزہ کا شفا اسپتال خالی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے مریضوں اور بے گھر فلسطینیوں کو اسپتال سے نکال دیا۔ 7,000 بے آسرا لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ میتیں بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اسپتال میں دم توڑنے والے مریضوں کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ چکوال کے مدرسے کی بات کرتے ہیں، جہاں 14 بچوں سے مبینہ زیادتی کے الزام میں 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ مرکزی ملزم قاری ذیشان طالب علموں کے جسم پر چاقو سے زیڈ بھی بناتا تھا۔ مدرسے کے محتمم نوید حیدری کا دعویٰ ہے کہ بچوں سے زیادتی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کچھ والدین نے مار پیٹ کی شکایت کی تھی تو CCTV کی مدد سے تصدیق کے بعد 2 استاد نکال دیے گئے تھے۔ چکوال کے چوا چوک کا مدرسہ طالب علموں کے لیے خوف کی علامت۔ 2 استاد عرصے سے مبینہ زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، دھمکاتے رہے کہ کسی کو بتایا تو جان سے مار دیں گے۔ ملزم قاری ذیشان زیادتی کے بعد طالب علموں کے جسم پر چاقو سے زیڈ بناتا تھا۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں جسم پر زخم کی تصدیق ہو گئی۔ اب تک 14 طلبہ سے زیادتی کا انکشاف ہوا، لیکن ذرائع کہتے ہیں اصل تعداد زیادہ ہے۔ DPO واحد محمود نے بتایا، کھلی کچہری کے دوران اس واقعے کا پتہ چلا تو مدرسے جا کر بچوں سے ملے۔ چائلڈ ابیوز کا کیس جامعہ مصطفیٰ کے اندر پیش آیا ہے۔ میں فور موقع پر پہنچا، تمام بچوں کا انٹرویو کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی چائلڈ ابیوز کا کیس وہاں پہ ہوا ہے۔ ابتدائی طبی معائنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ مرکزی ملزم قاری ذیشان کو میاں والی اور دوسرے ملزم قاری انیس کو راولپنڈی کے علاقے جاتلی سے گرفتار کیا۔ قاری ذیشان اور قاری انیس دونوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس چاقو سے بچوں کے باڈی پارٹس کے اوپر تشدد کے نشانات بنائے گئے تھے، وہ موقع سے ریکور کیا جا چکا ہے۔ مدرسے کے محتمم نوید حیدری نے زیادتی کی تردید کی، دعویٰ کیا چند بچوں نے مار پیٹ کی شکایت کی تو 2 استادوں کو نکال دیا تھا۔ 10 نومبر کو ہمارے ایڈمن آفس میں شکایت آئی ہے 3-4 بچوں کی کہ اساتذہ نے ہمارے اوپر تشدد کیا ہے، تو ہم نے فوری طور پر ان دونوں کو فارغ کر دیا۔ جنسی ہراسمنٹ اور اس طرح کے جو بدفعلی کے کام ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تشدد والی بات ضرور ہے اور اس کا CCTV ویڈیو جو ہے وہ انتظامیہ لے گئی ہمارے پاس سے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ طلبہ اور ملزموں کو DNA ٹیسٹ کے لیے پیر کو پنجاب فورنزک لیبارٹری لاہور لے جایا جائے گا۔ چکوال کے مدرسے میں زیر تعلیم طلبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعات اور پولیس نے مدرسے کے پرنسپل اختر جاوید اور ایڈمن انچارج بلال کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس مدرسے پہنچی تو محتمم نوید حیدری اور نائب محتمم غائب ہو گئے۔ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے امیر عباس موجود ہیں۔ امیر، تو یہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ابتدائی تفتیش میں کیا بتایا گیا ہے؟ ان کی جانب سے کچھ معلوم ہو سکا؟ جی، ہم اس وقت موجود ہیں مدرسہ جامعہ مصطفیٰ میں، جہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی یہاں پر نہ طالب علم ہے نہ محتمم ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تھانہ صدر پولیس نے پرنسپل اور ایڈمن کو گرفتار کر لیا، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تفتیش جاری ہے اور جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ابتدائی تفتیش کے دوران ان کا نام کوئی سامنے آیا، اس وجہ سے ان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ واقعہ رپورٹ ہونے کے بعد کل سے پولیس حرکت میں، اور کل 14 بچوں کو میڈیکل کے لیے اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں ابتدائی طور پر ان پر چاقو کے وار کے زخموں کے نشان جو ہیں ان کی تصدیق ہو گئی ہے، تاہم مکمل ان کے میڈیکل کے لیے پیر کے روز انہیں لاہور لے جایا جائے گا فرانزے کے لیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جامعہ مصطفیٰ میں صرف 2 بچے وہ ہیں، باقی تمام عملہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے جب پولیس آئی تو
मोतमिम और उनके साथ ही जो है वो नामालूम मकाम गाड़ी में बैठ के नामालूम मकाम की तरफ चले गए थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वाक़े का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया है और पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। जो 14 मुतासरा बच्चे हैं वो और उनके वालिदैन अब थाना में मौजूद हैं, जिनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। जी तो अमीर अब्बास, ये बताइए, आपने FIR का जिक्र किया, तो उस FIR में इनका नाम दर्ज किया गया है, मोहतमिम का और दीगर जो असातिज़ा हैं उनका? नहीं, ये अमूमन ऐसा होता है कि FIR जब दर्ज होती है वो इब्तदाई रिपोर्ट होती है। इब्तदाई रिपोर्ट में मुद्दई के बयान की रोशनी में फिर बाद में मज़ीद नाम ऐड किए जाते हैं। हो सकता है कि ज़िमनी में इनका नाम आ गया हो या इन्हें वैसे बुलाया गया हो तफ्तीश के लिए, क्योंकि कल पुलिस यहाँ से CCTV कैमरे ले गई थी और उसकी रोशनी में उसकी मदद से कोई ऐसा उनको क्लू मिला है कि इनको उन्होंने अभी गिरफ़्तार किया है। और मोहतमिम नवीद हैदरी जब यहाँ से गायब हुए अभी थोड़ी देर पहले वो उन्होंने मीडिया से टॉक किया और अपना मौक़िफ़ बयान किया है, लेकिन अब वो नामालूम मकाम की तरफ चले गए हैं। और इससे ज़ाहिर होता है कि कुछ जो है तफ्तीश का सिलसिला जब आगे चल रहा है तो उसमें मज़ीद कोई नाम आ रहे हैं। जी ठीक है जी। अमीर अब्बास हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं कि अब तक की पेशरफ्त ये है कि चकवाल के मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़यात जो कि कल रिपोर्ट हुए हैं, 14 बच्चों को जिनको मेडिकल के लिए भेजा गया है उनका फॉरेंसिक होगा पीर को। और इस वक्त पेशरफ्त ये है कि पुलिस की जानिब से मदरसे के जो प्रिंसिपल हैं अख्तर जावेद और एडमिन जो हैं उनको बिलाल को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि पुलिस यहाँ पर मदरसे में पहुंची थी तो मोहतमिम नवीद हैदरी और उनके जो नायब मोहतमिम है वो वहाँ से गायब हो गए थे। अमीर अब्बास हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चकवाल के मदरसे के तालिब इल्मों की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं कि उस्तादों ने 13 तलबा के साथ गलत हरकत की। किसी तालिब इल्म के हाथ पर Z, किसी के हाथ पर A लिखते रहे, जिसकी ज़ियाउल हक साहब से शिकायत की गई तो उन्होंने दोनों असातिज़ा को निकाल दिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शीमा किरमानी को हमने नहीं निकाला, तकरीब से वो खुद गई। बरतानवी हाई कमीशन की वजाहत सामने आ गई। समाजी रहनुमा और कथक डांसर शीमा किरमानी ने गजा के हक में नारे लगाए। नारों के बाद वो तकरीब छोड़कर चली गईं। शीमा किरमानी ने दावा किया था कि उन्हें तकरीब से निकाला गया है। बात करेंगे, मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सलाहुद्दीन। बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन में शाह चार्ल्स सोएम की 75वीं सालगिरह की तकरीब के मौके पर यह अचानक जो है समाजी रहनुमा हैं शीमा किरमानी गजा के हक में नारेबाजी शुरू कर दी थी। नारों के बाद जब शीमा किरमानी तकरीब छोड़ कर चली गई थी, वाकया तब पेश आया कि जबकि बरतानवी हाई कमीशन जेन मेरिट ने तकरीर शुरू की, जिसके दौरान जो शीमा किरमानी ने सीज फायर का नारा लगाया कि सीज फायर गजा का नारा लगाया। और उसके बाद जब बरतानवी हाई कमीशन में अमला उनके पास आया, उनको खामोश रहने के लिए कहा तो वो नहीं मानी और चली गई थी। जबकि बरतानवी हाई कमीशन के तर्जुमान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये अफसोस की बात है कि माहौलियाती तब्दीली जैसे एक इंतहाई अहम मसले पर हाई कमिश्नर बात कर रही थी और एक मेहमान की जानिब से इसमें खलल डाला गया। मेहमान के साथ इज्जत एहतराम के साथ खामोश रहने को कहा गया, मगर वो ना मानी और तकरीब से जाते चली गई थी। लेकिन जाते हुए हाई कमीशन के अमले से उन्होंने इस अपने रवैये पर जो है वो माफी भी मांगी थी, ये कहना है बरतानवी हाई कमीशन के तर्जुमान का। तो ये वाकया पेश आया था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि ICC वर्ल्ड कप का फाइनल कल होगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। रोहित शर्मा और पैट कमिंस का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट तारीखी मुकाम पर हुआ। ऑस्ट्रेलवी कप्तान कहते हैं अहमदाबाद में क्राउड को खामोश कराने में मजा आएगा। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अहमदाबाद स्टेडियम के बाहर मेले का समा है। भारतीय फैंस को अपनी टीम की जीत का यकीन है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। एक जबरदस्त माहौल है। कल फाइनल होने वाला है इस वर्ल्ड कप का। 47 मैचों के बाद अब ये 48वां मैच है और भारत फेवरेट है। एक माहौल है, जबरदस्त खेल पेश किया है। भारत का चांस है या सिर्फ थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया का भी है? नहीं, ये इंडिया का जीतने का पूरा जीतने का चांस है और ये तो इंडिया का बदला लेने का वर्ल्ड कप चल रहा है। इंडिया जीतेगा तो ये देश के लिए, क्रिकेट के लिए कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा और हमको वर्ल्ड कप लेना चाहिए। हम लोग वर्ल्ड कप का हकदार है। हमको एक ही टारगेट था वर्ल्ड कप लेने के लिए। आज हम लोग आए कोलकाता से बस ये मैच देखने के लिए और ये वर्ल्ड कप के लिए।
बहुत से लोगों ने कंट्रोवर्सी भी जनरेट करने की कोशिश की कि पिच बदल दी, टॉस का ऐसा हो रहा है, लेकिन अच्छे खेल की, अच्छे प्रदर्शन की तारीफ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने बेहतरीन खेल पेश किया है और वो डिजर्विंग चैंपियन होंगे कल अगर वो फाइनल जीतते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा डर लगता है इसलिए कि खतरनाक टीम है, लेकिन इंडिया फेवरेट होगी। 70 टू इंडिया, 30 टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन कप्तान को रिजर्वेशंस भी हैं, कहीं पिच तब्दील न कर दी जाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को भी भारत पर भरोसा नहीं। फाइनल की पिच का मुआयना किया और अपने मोबाइल से तस्वीरें भी बनाई। फाइनल उसी पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा जिस पर पाक भारत मैच हुआ था। न्यूजीलैंड और भारत के सेमीफाइनल में आखिरी वक्त पर पिच तब्दील करने पर तनाज़ा हुआ था। आईसीसी को वजाहत भी देना पड़ी थी। ईरानी साइकिलिस्ट परवेज पाकिस्तान के सफर पर निकले हुए हैं। वो मुख्तलिफ शहरों में रुकते और घूमते घुमाते 30 दिन में कराची पहुंच गए। कहते हैं पाकिस्तान जैसे मेहरबान लोग किसी मुल्क में नहीं देखे। परवेज का पैगाम है कि लोग आपस में जुड़ेंगे तभी दुनिया का पहिया चलेगा। मेरा नाम परवेज अस्सारहा है। मैं ईरानी हूँ, पेशे के एतबार से सिविल इंजीनियर। معمولاً مرخصی هام رو در سفر به کشورهای همسایه علاوه خصوص کشورهای मैं अमूमन छुट्टियों में पड़ोसी मुल्कों का सफर करता हूँ, खासतौर पर हमसाया मुस्लिम मुल्कों का। इस बार मैंने पाकिस्तान घूमने का इरादा किया। मैंने अपना सफर लाहौर से शुरू किया, फिर इस्लामाबाद गया, रावलपिंडी, वहाँ से पेशावर, उसके बाद मियावाली, वहाँ से मुल्तान। मोइंजोदड़ो के कदीम और तारीखी आसार देखे, फिर लाड़काना देखा, वहाँ से रानीपुर से होता हुआ कराची आया। رانیپور رفتم و از رانیپور به سمت کراچی. خیلی دوست داشتم که मुझे पाकिस्तान घूमने का बहुत शौक था, लेकिन गाड़ी, तैयारे या रेलगाड़ी का सफर बहुत तेज रफ्तार होता। मैं पाकिस्तान को करीब से न देख पाता, ना ही इतने सारे मेहरबान पाकिस्तानियों से मुलाकात और गुफ्तगू हो पाती। پاکستانی ها این مردمان بسیار مهربان. ایران ده السلام علیکم. السلام علیکم. یک لوگو و یک میسیج هست از मेरी कमीज पर ये लोगो ईरान की तरफ से सारी दुनिया के लिए पैगाम है। इस लोगो में एक साइकिल सवार है। साइकिल के पिछले पहिए में 5 अफराद एक दूसरे से बगलगीर हैं। ये 5 अफराद दुनिया के 5 बर्रे-आज़मों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगला पहिया खुद दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है। नीचे एक जुमला लिखा है कि राब्ते ही दुनिया का पहिया घुमाते हैं, यानी अगर हम दोस्ती और रवादारी से रहेंगे तभी दुनिया का पहिया चलेगा। پیمان باشیم چرخ دنیا میچرخه. खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में बायोमैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। सुहेब निसार का कातिल उसी का दोस्त और पार्टनर निकला। दोस्त को कत्ल करने वाले आसिम ने खुदकुशी कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लोधी से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। पुलिस आज केस सॉल्व करने के लिए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सचल ही के इलाके मद्रास कॉलोनी में पहुंची थी, जहां पर मुलजिम जो इसका बचपन का दोस्त था आसिम, इसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तहकीकात की गई तो ये पता चला कि आसिम ही इसका दोस्त कत्ल करने के बाद गाड़ी इसकी लेकर फरार हो गया था और गाड़ी पार्क करते हुए इसकी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई थी। इस केस को सॉल्व करने के बाद पुलिस आज इसकी गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची। अच्छा तो सलमान, फिर इसने कत्ल क्यों किया? देखिए, गिरफ्तार अभी जो घर वाले बता रहे हैं कि इससे गिरफ्तारी से शर्मिंदगी के तौर पर इससे खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। क्राइम सीन यूनिट को भी तलब किया गया। और एक बात अहम है, कत्ल के वाकये के बाद ये मकतूल के घर पे नमाज जनाजा में भी आ रहा था, वाकये पर अफसोस का भी इजहार कर रहा था, तफ्तीशी पुलिस से तावन भी कर रहा था और कई बयान। अच्छा, कत्ल की क्या वजह सामने आई सलमान? देखिए, 2 से 3 करोड़ रुपए के तनाजा इन दोनों दोस्तों में चल रहा था। बचपन के दोस्तों के दौरान कारोबार भी एक साथ ही मुश्तरका तौर पर कर रहे थे। रकम के तनाजे पर इसने अपने दोस्त को बायोमैकेनिकल इंजीनियर को फायरिंग करके कत्ल किया। ठीक है, कराची में बायोमैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान लोधी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।